Hello friends, welcome to Learner's Planet. This is our fifth workshop and we'll continue the topic verbs. And I'm sure you are having your notebook and pen with you, and now let's begin the session. Okay, it is him that I have been looking for. ये कहना चाह रहा है कि ये वो है जिसको मैं ढूंढ रहा था. लुकिंग फॉर मतलब जिसकी तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, राइट. सो यहाँ पर इट इज हिम गलत है. जो करेक्ट है वो इट इज ही. इट इज आई होता है इट इज मी भी जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, राइट. इट इज मी भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इट इज हिम भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है. जो करेक्ट है वो क्या है? इट इज आई, और वी कैन से फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इट इज ही. So it is he that I have been looking for. So it is he that I have been looking for. This one is correct. Okay, so just again a recap. It is me is incorrect, it is I, and it is him is also incorrect. It is he. Okay. Now, being a nice day, we decided to go out. Being a nice day, being इस तरह से यूज नहीं होगा. ये एक अच्छा दिन होने की वजह से हम लोग बाहर घूमने गए, तो यहाँ पर इट इज मिसिंग, राइट. ये जो सेंटेंस है वो इट के बिना इनकम्प्लीट है. सो इट बीइंग अ नाइस डे वी डिसाइडेड टू गो आउट, राइट. इट बीइंग, नॉट बीन, इट बीइंग अ नाइस डे वी डिसाइडेड टू गो आउट. Now, he is one of the servants who hardly ever works. Now see here, one of the servants. So ये जो one of the है वो एक plural subject है, क्योंकि servants है यहाँ पर, right? So अगर यहाँ पे ये plural subject है तो ये जो verb है वो ये भी है वो plural वाली होनी चाहिए. Works नहीं होकर के work होना चाहिए, right? So he is one of the servants who hardly ever work. So, he is one of the servants who hardly ever work. Once again, one of the means a plural subject, right? अगर subject plural है, third person plural, हम जो verb है वो भी हम plural वाला use करते हैं. So, works नहीं आकर के work आएगा. Okay? So, this is the correct one. कहना क्या चाह रहा है कि ये जो बहुत सारे जो भी सर्वेंट्स है उसमें से ये एक है जो हार्डली मतलब नहीं के बराबर. जब अपने को नेगेटिव बताना होता है तो हम हार्डली यूज करते हैं. तो हु हार्डली एवर वर्क, जो कभी भी काम करता है मतलब हार्डली मतलब लगभग ये काम नहीं करता है. तो ये एक ऐसा नौकर है बहुत सारे नौकरों में से जो लगभग काम नहीं के बराबर करता है. ठीक है. Let's see this one. He would sooner to quit the job than bear such insult. The first thing is to quit is not required. He would sooner quit the job. To quit is actually infinitive form. That's not at all required over here. So this is the first thing. To is not required. Okay. And moreover, there should be a change in the word insult. Okay. Insult also, since the adjective that precedes it is such, right? Hence either the word should be insults or an insult, right? Such insult is wrong. It should be an insult or such insults. So such insults. So he would sooner quit the job than bear such insults. वो बहुत जल्दी ही अपनी नौकरी छोड़ देगा, इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करता है वो, ऐसा ये कहना चाह रहा है स्पीकर. So here he would sooner quit such an insult. He would sooner quit the job than bear such insults. This one is correct. Here THEN आ रहा है, जबकि यहाँ पर THAN आ रहा है. ये जो then है कंपैरिजन के लिए ये वाला यूज होता है. Okay, so this will be the final answer. This is the correct one. Okay, so he would sooner quit the job than bear such insults, or he would sooner quit the job than bear such an insult. Okay, I hope you are clear.
सुनील माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। नाउ ये जो बंदा है वो बात कर रहा है सुनील की। वो सुनील को तीन चीजें बोल रहा है। सुनील उसका दोस्त भी है, फिलोसोफर भी है और गाइड भी है। लेकिन कुल मिलाकर के माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ये सब जो है वो सुनील ही है, राइट। और सुनील क्या है? एक सिंगुलर पर्सन है। सुनील इज सिंगुलर नाउन, राइट। सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आना चाहिए, राइट। सो सुनील माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम, not have come, right? So Sunil, okay, has come. This one is there. Sunil, my friend, philosopher and guide has come. ये सब जो है my friend, philosopher and guide ये सब सुनील के लिए adjectives हैं, right? But सुनील itself is a singular noun, so यहाँ पर have की जगह has आएगा, okay? So बहुत important point है, आप note करके रख लीजिए। Now, the crowd have no answer to what the culprit says. Now, crowd is a collective noun, right? And it's a singular noun, right? So, crowd के बाद में have नहीं आना चाहिए, has आना चाहिए, right? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम has यूज करते हैं। और crowd क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। और इस कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर है, तो इसके बाद में हैज ही आएगा। सो द क्राउड हैज नो आंसर टू व्हाट द कल्प्रिट सेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। अब डिनाई का मतलब ही पहले से मना करना होता है। डिनाई मतलब मना करना, ओके। सो किसी भी चीज से इनकार करना, मना करना, रिफ्यूजल यू कैन से, राइट। सो पहले से जब यहाँ पर मना करने वाला जो एक्सप्रेशन है वो आ रहा है तो यहाँ पर नोट की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है कि डबल नेगेटिव हो रहा है। उसने मना भी किया है और यहाँ पर फिर नोट अ थीफ वो भी है, तो डबल नेगेटिव जो होता है वो उसका कोई सेंस नहीं होता, राइट। सो ही डिनाइड दैट ही वॉज अ थीफ। उसने मना किया या उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वो एक चोर था, राइट। तो he denied that he was a thief. He denied that he was a thief. तो एक फैक्ट जो था कि वो एक चोर है, उसने उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो डबल नेगेटिव की जरूरत नहीं है। He denied that he was a thief. That one is correct. Okay. Now this question. He dares not to commit a murder. उसको एक मर्डर करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ऐसा स्पीकर कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या गलतियां हैं आप ध्यान से समझिए। सी, डेयर, नीड, ऑट टू, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये जब भी किसी नेगेशन के साथ यूज होते हैं, मतलब नेगेटिव के साथ यूज होते हैं, जैसे नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट नॉट टू, तो इनके साथ तो इनको हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में यूज करना होता है, ठीक है। एस ई एस और आई ई एस नहीं लगना चाहिए, चाहे यहाँ पर ही शी लगाओ, राइट। वैसे क्या होता है जनरली जब ही शी जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ में एस ई एस आई ई एस लगाते हैं। बट विथ मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक डेयर, नीड और टू हम वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में यूज करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो ये जो है कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि ही के साथ डेयर्स लगा दिया, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव यूज हो रहा है और सब्जेक्ट चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे कोई नाम हो, इसको हम जो डेयर है उसको हम एज इट इज यूज करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज ही डेयर्स की जगह ही डेयर आएगा, राइट। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, ही डेयर एंड ही डेयर, राइट। दीज टू आर रॉन्ग। उसके बाद में जो होता है कि ये जितने भी मॉडल्स हैं नीड, डेयर, इन सबको विदाउट प्रिपोजिशन टू के यूज करना होता है, राइट। ही डेयर नॉट टू ये गलत है, राइट। ही नीड नॉट टू वरी नहीं होता, ही नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट स्टडी, यू नीड नॉट डांस, राइट। सो नीड नॉट, डेयर नॉट ये विदाउट टू के यूज होते हैं। ही डेयर नॉट कमिट अ मर्डर ऐसा आएगा यहाँ पर, राइट। ही डेयर नॉट टू कमिट अ मर्डर ये गलत है, राइट। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। जब भी हम नेगेशन यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में लाइक डेयर, नीड, इन सब के साथ में, तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लेते हैं
चाहे हम ही शी के साथ यूज कर रहे हो, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इन सब के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता है। सो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही नीड नॉट वरी होता है, ही नीड नॉट टू वरी नहीं होता। सो इसी तरह से ही डेयर नॉट कमिट अ मर्डर होगा, ही डेयर नॉट टेल मी सच थिंग्स ऐसा होगा, ही डेयर नॉट टू नहीं होगा। ओके, सो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट देम डाउन। सो ही डेयर नॉट कमिट अ मर्डर, दिस वन इज द करेक्ट। नाउ 30 किलोमीटर आर अ बिग डिस्टेंस। ना 30 किलोमीटर्स है यहाँ पर, ये एक सिंगल यूनिट है, राइट। होता है कि 30 किलोमीटर एक बहुत बड़ी दूरी, जो 30 किलोमीटर है वो एक यूनिट है, राइट। इसको आपको तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होना चाहिए। जैसे अगर आपका ये 500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, या 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, तो ये जो 5 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, या 500 रुपए हैं, या 500 रुपए बहुत छोटी रकम है, तो ये सब क्या सिंगल यूनिट्स होती हैं। तो सिंगल यूनिट्स के साथ में आप जो वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर फॉर्म की होनी चाहिए, राइट। सो आर यहाँ पे यूज नहीं होगा। 30 किलोमीटर इज अ बिग डिस्टेंस। 30 किलोमीटर्स किलोमीटर्स आएगा, 30 किलोमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस, राइट। और ये अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सो इसकी जरूरत नहीं है। 30 किलोमीटर्स ये पूरी एक यूनिट हुई, इज अ बिग डिस्टेंस। सिमिलरली 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। जब भी यहाँ पर सिंगल यूनिट की बात हो तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी चाहिए। Now this one, let us go to seeing the bride. Now so many times we have discussed this type of questions. Here to के after to जो verb है वो ओरिजिनल फॉर्म में यूज होना चाहिए, राइट। टू प्लस वर्ब वी कॉल इट एज इन्फिनेटिव, राइट। टू प्लस वर्ब, एक्शन वर्ड जो भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और ये हम कब यूज करते हैं, पर्पस के लिए, टू इंडिकेट अ पर्पस, कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी काम। सो टू प्लस एक्शन वर्ड, इट इज यूज टू इंडिकेट पर्पस, राइट। एंड वी नो इट एज इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर जो वर्ब है या जो वर्ड है एक्शन वर्ड, वो ओरिजिनल फॉर्म में यूज होती है टू के साथ में, राइट। सो लेट अस गो टू सीइंग द ब्राइड। वैसे ये कहना क्या चाह रहा है कि चलो दुल्हन को देखने के लिए चलते हैं, ब्राइड, दूल्हा दुल्हन जो भी है उसको देखने के लिए चलते हैं। ब्राइड मीन्स वैसे दुल्हन होता है, तो दुल्हन को देखने के लिए चलते हैं। सो लेट अस गो टू सी द ब्राइड। लेट बी कभी नहीं आता, लेट अस होता है, इंपॉर्टेंट थिंग। टू के बाद में आईएनजी नहीं आएगा। टू सी इन्फिनेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। सो लेट अस go to see the bride, let's go to see the bride, let's do that, let's go to market, let's go to temple, right? So I hope you are clear. Let's go to see the bride. See this one, the news are being broadcast from the All India Radio. अभी सी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं, बहुत सारे नाउन्स वी कैन से ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि प्लूरल है, बट वो प्लूरल होते नहीं। जैसे न्यूज है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सब लगते हैं कि ये प्लूरल है, बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं, राइट। सो अब जब ये वर्ड सिंगुलर है, ये जब नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर के हिसाब से होना चाहिए, राइट। सो द न्यूज इज, not news are. So the news is being broadcast from the All India Radio. News is being, वर्ग गलत है, अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, इट्स ब्रॉडकास्ट ओनली। ये जो है वो एक्चुअली पैसिव वॉइस में, जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। क्या क्या कहना चाह रहा है, जो द न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, ये जो न्यूज है कोई पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात कर रहा होगा, या जो भी है द न्यूज लिखा है इसलिए। सो ये जो न्यूज है वो ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट हो रही है, राइट। न्यूज कर रही है नहीं, न्यूज हो रही है, राइट। सो इट इज अ पैसिव वॉइस, इट्स द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में जब हम इज और बीइंग यूज करते हैं तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। सो इज बीइंग डन, इज बीइंग कुक्ड, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ब्रॉडकास्ट वर्ड है, ये जो वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं।
प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। सो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, जैसे पुट वर्ड है या कट है, ये सबके जो तीनों फॉर्म होते हैं वो सेम ही होते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। द न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो। Okay, this one is correct. So first of all, the important thing is news, mathematics, politics, economics, ये सारे जो words हैं वो लगता ऐसा है कि plural है, but वो सब singular है। अब जब ये word singular है तो आपको यहाँ पे helping verb वैसा ही use करना है, are की जगह is use होगा। फिर broadcast जो word है उसके तीनों form same ही होते हैं, इसलिए broadcasted नहीं आएगा, broadcast। Okay, so this one is correct. Now this sentence, I shall be watching television for 6 hours when you return. Okay, for 6 hours. That means एक ड्यूरेशन दी हुई है, और इस प्रिसाइजली जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई भी काम पहले शुरू हो रहा है, पास्ट में शुरू हो रहा है और प्रेजेंट अभी तक कंटिन्यू है। बेसिकली यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सपोज इस पॉइंट से शुरू हुआ, राइट। जैसे आई शैल बी वॉचिंग टेलीविजन फॉर 6 hours व्हेन यू रिटर्न, सपोज ये 6 बजे से शुरू हुआ और 12 बजे तक चल रहा है, राइट। सो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, राइट। इसके बाद कब खत्म होगा वो पता नहीं, लेकिन इस मोमेंट पर हम बात कर रहे हैं, राइट। सो आई शैल बी वॉचिंग टेलीविजन फॉर 6 hours व्हेन यू रिटर्न, ये गलत है। यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते तो क्या बोलते हैं, आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 6 hours, राइट। आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन for say 2 hours or for 6 hours or maybe since 5 o'clock, something like that, right? So ये जो जैसे ये present perfect continuous tense है, वैसे यहाँ पर future perfect continuous tense होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब तुम लौटोगे तब तक मैं 6 घंटे से टीवी देख रहा हूँगा, राइट। जब तुम लौटोगे तो मैं 6 घंटे से टीवी देख रहा हूँगा। तो जब वो लौटेगा उसके पहले यहाँ पे काम शुरू हुआ है, और वो जब लौट रहा है बंदा तब तक भी ये काम कंटिन्यू है, राइट। सो दैट सेंटेंस शोज एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड टिल द प्रेजेंट टाइम, राइट, एंड इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, राइट, एंड विल एंड एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है वो हमें नहीं पता। तो हमें यहाँ पर इस तरह के जब भी सेंटेंसेस होंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना। अब ये पर्टिकुलर केस क्योंकि यहाँ पे शेल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। सो हैव बीन वॉचिंग, ये जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, शेल और यूज होगा। सो आई शेल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 6 hours व्हेन यू रिटर्न। आई शेल हैव बीन वॉचिंग, आई शेल हैव बीन वॉचिंग television for 6 hours when you return, right? So this is जो present I'm sorry जो perfect continuous tense का जो format है वो यही है, have been watching, I have been, you have been, she has been, they have been, something like that. Okay, so this one is correct. Now you need not टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स। हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डेयर के बारे में, तब मैंने आपको बताया था ये जो कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज है, नीड, डेयर और टू, ये जब भी नेगेशन के साथ में यूज होते हैं तो हम इनके साथ में जो प्रिपोजिशन है टू वो यूज नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पर जो टू है वो इनकरेक्ट है। सो यू नीड नॉट, टू नहीं आएगा, यू नीड नॉट टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स। So we have just one option here. Need not took, took is past tense of take, past tense of take, so it's wrong. You need not take such drastic steps, apostrophe की जरूरत नहीं, you need not take such drastic steps, this one is correct. Such a drastic steps, अगर a आया है तो यहाँ पे plural नहीं आना चाहिए, right? So ये क्यों सही है वो बताया, और ये बाकी तीनों क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बताया, राइट। सो वंस अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसको अगर आप नेगेशन में यूज करते हैं तो टू मत यूज करिए, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लियर। नाउ हेवन और हेल मेक लिटिल डिफरेंस फॉर द मैन हु बिलीव्स ओनली इन लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पे देखिए लिटिल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव के लिए यूज हुआ। लिटिल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वी हैव
डिस्कस द यूसेज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, राइट. सो जो लिटिल है वो बहुत ऐसी क्वांटिटी को डिनोट करता है जो नहीं के बराबर है, राइट. सो हेवन और हेल make little difference, or you can say no difference for the man who believes only in life on earth. तो ये जो ऐसे लोगों, स्वर्ग हो या नरक हो, उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जो अर्थ में, मतलब पृथ्वी पर अपनी जिंदगी में जो बिलीव करते हैं, जो अपनी जिंदगी को जीते हैं, उन लोगों को स्वर्ग और नरक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहा है, राइट. अब जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जब दो नाउन और के साथ हम लोग जब कंजंक्शन और यूज करते हैं, जैसे हेवन और हेल, ये दोनों नाउन है, इन दोनों को ज्वाइन किया है कंजंक्शन और के साथ में, राइट. सो जब इस तरह से हम यूज करते हैं तो ये जो पूरी चीज है इसको सिंगुलर कंसिडर करना पड़ता है, राइट. When two nouns are joined with the conjunction or, they are considered as singular, and if they are considered as singular, that means they will take the singular verb. So here instead of make we should have makes. So heaven or hell makes. So first of all this is wrong. Little difference for the man who believes only in life on earth. अब जो नेक्स्ट है, ये जो मेक अ डिफरेंस है, मेक लिटिल डिफरेंस और मेक अ डिफरेंस, ये जो फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज, ये इट इज यूजुअली फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू. मेक लिटिल डिफरेंस टू, ओके, मेक लिटिल डिफरेंस टू द मैन हु बिलीव्स ओनली इन लाइफ ऑन अर्थ, राइट. सो दिस 4 इज रॉन्ग. सो ये गलत हो गया. आई थिंक बाकी जो दोनों ऑप्शंस है वो सेम ही दिख रहे हैं, कोई सा भी एक मार्क कर दीजिए. आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक. सो हेवन और हेल मेक्स लिटिल डिफरेंस टू द मैन हु बिलीव्स ओनली इन लाइफ ऑन अर्थ. मैन हु बिलीव्स, देखिए जो मैन है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से वर्ब यूज हुआ है. हेवन और हेल, और जो कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं इन दोनों नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए, उसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब है उसका सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया, राइट. सो दिस वन इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों सेंटेंसेस सेम ही है, तो कोई सा भी आप मार्क कर सकते हैं. आई होप यू आर क्लियर. दे हैव ट्राइड टू डेलिबरेटली मेक द जर्नी डिफिकल्ट, मतलब उन लोगों ने जानबूझ करके जर्नी को, जो सफर है उसको मुश्किल करने की कोशिश की है, राइट. अभी यहाँ पे जो वर्ड है डेलिबरेटली, इट इज एक्चुअली एन एडवर्ब. तो अव्वल तो ये टू के बाद यूज नहीं होगी, राइट, पहली चीज. और एडवर्ब का प्लेसमेंट कहाँ होता है ये हम पहले भी डिस्कस किए. एडवर्ब का जो करेक्ट प्लेसमेंट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है, राइट, बिटवीन, or I just can say after helping verb and before main verb, right. So they have deliberately tried to make the journey difficult. ये जो है वो correct format है. They have deliberately tried to make the journey difficult. So they have deliberately tried to make the journey difficult. Okay, again adverb है deliberately, जानबूझ करके, तो उसका placement कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले. सो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब इसके बीच में, ओके. नाउ दिस वन, आइदर दे और शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज डिक्लाइन. गुड एग्जाम्पल. See, since these two pronouns, they or she, they are joined with this conjunction or, right? So the verb will agree to the noun. This verb will agree to the noun which is closest to it, right? And noun, or maybe we can say pronoun. Now यहाँ पर ये जो हमारे पास दो हैं, दे और शी, तो ये जो verb है वो इसके साथ agree करनी चाहिए, right? क्योंकि closest ये है, राइट. अब जो शी है उसके साथ में हम आर तो यूज करेंगे नहीं, हम क्या यूज करेंगे, इज. सो आइदर दे और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज डिक्लाइन. या तो ये होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आर को मेंटेन रखना है, आर को ऐसे ही रखना है, तो शी और दे की पोजीशन है वो इंटरचेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आर के क्लोजेस्ट में जो एकदम सबसे पास में दे हो जाएगा, तो फिर आर करेक्ट है. ठीक है, आप मेरी बात समझे. वापस मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए. ये जो वर्ब है, ये जो दोनों प्रोनाउन है वो और कंजंक्शन जो ये और से कनेक्टेड है, तो ये जो वर्ब है वो
ये इन दोनों में से जो क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होगी, राइट। सो आइदर दे और शी इज होगा या फिर आइदर शी और दे आर, राइट। सो हम देखते हैं अगर दे और शी है, सपोज यहाँ पे दे और शी है तो यहाँ पर इज होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आइदर शी एंड दे आर, एंड लग गया तो वैसे भी गलत हो गया, एंड के साथ में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो आइदर शी और दे के साथ इज हो गया, सो आइदर शी और दे आर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। अब क्या होगा, ये जो वर्ब है वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा ना। दे के साथ आर करेक्ट है तो ये पूरा सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। सो आइदर शी और दे आर या फिर आइदर दे और शी इज, दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो करेक्ट होगा। So here either she or they are responsible for country's decline, right? बहुत important है, ध्यान रखिएगा। Now he indulged in every bad habit except to drink. Okay, अभी ये कहना ये चाह रहा है कि वो हर बुरी आदत में मतलब था, इंडल्ज था, उसको हर बुरी आदत थी एक्सेप्ट वो ड्रिंक नहीं करता था, मतलब शराब नहीं पीता था, बियर नहीं पीता था, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। ये जो सेंटेंस है ही इंडल्ज्ड, मतलब पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, राइट। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। अब ये जो टू ड्रिंक है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें जिरेंडल फॉर्म जो है वो यूज करना चाहिए, दैट इज एक्चुअली वर्ब विद आईएनजी यूज्ड एज नाउन, राइट। सो ही इंडल्ज्ड इन एवरी बैड हैबिट एक्सेप्ट ड्रिंकिंग, मतलब एक एक्शन आना चाहिए यहाँ पर, कोई ना कोई नाउन आनी चाहिए कि वो ड्रिंकिंग इस क्या एक हैबिट हो गई, ओके। और ड्रिंकिंग बेसिकली इट्स अ नाउन, राइट। सो ड्रिंकिंग के सिवाय, मतलब पीने के सिवाय वो सारी बैड हैबिट्स में मतलब उसको थी, सारी बुरी आदतें उसको थी, राइट। सो टू ड्रिंक की जगह ड्रिंकिंग आना चाहिए। सो ही इंडल्ज्ड इन एवरी बैड हैबिट एक्सेप्ट ड्रिंकिंग। ही इंडल्जिंग गलत है, वॉज इंडल्जिंग गलत है, ही इंडल्ज्ड इन एवरी बैड हैबिट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का मतलब तो एक्सेप्ट करना होता है स्वीकार करना, राइट। तो एक्सेप्ट इसका मतलब होता है इसके सिवाय, दैट इज लाइक टू एक्सेप्ट, टू स्वीकार कर लेना, और इसमें होता है इसके अलावा। सो ही इंडल्ज्ड इन एवरी बैड हैबिट एक्सेप्ट ड्रिंकिंग, दिस वन इज करेक्ट, राइट। नाउ आइदर और नाइदर नॉर का यूज डिटेल में हमने बेसिक सेशंस में डिस्कस किया है, तो अभी आपको क्लियर होगा। आइदर ऑफ द बॉयज, सी आइदर ऑफ द बॉयज मतलब एक्चुअली दोनों में से एक, राइट, दोनों लड़कों में से एक। आइदर जो है दो में से एक को चूज करने के लिए यूज करते हैं, तो दोनों में से एक, तो अल्टीमेटली इंसान तो एक ही है, दैट मीन्स ये जो चीज, ये जो फ्रेज है वो है तो सिंगुलर, तो यहाँ जो वर्ब है वो सिंगुलर के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। सो आइदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से एक लड़का, जाएंगे नहीं बोलते हम, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, जाएगा, या दोनों में से एक लड़का करेगा, राइट। करेंगे नहीं बोलते, अगर दो लड़के हैं तो हम करेंगे बोलते हैं। तो बेसिकली आइदर ऑफ द बॉयज जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। दोनों में से एक लड़का सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है, राइट। सो आइदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, ये है वो सही है। ये जो बॉयज है वो तो लड़के का अपोस्ट्रोफी आ गया तो इट्स नॉट प्लूरल, आइदर और तो हो ही नहीं सकता, आइदर ऑफ द बॉयज आर गलत है, ओके। सो दिस वन इज करेक्ट। आई होप यू आर क्लियर। Now this one, the train just left the station. अभी जो वर्ड है just, ये क्या बताता है कि अभी अभी ये काम हुआ है, तो जो काम में अभी अभी होने की फीलिंग आती है वहां पे सिंपल पास्ट नहीं यूज होकर के प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, राइट। सिंपल पास्ट का भी यूज होता है जब काफी पुराना टाइम हो गया, सपोज अभी आप दोपहर में बात कर रहे हैं और कुछ जो ट्रेन है वो सुबह में चली गई है, तो आप सिंपल पास्ट यूज कर सकते हो, लेकिन जो काम अभी अभी हुआ है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। सो द ट्रेन, और उसके बाद जस्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस होगा, जस्ट इज एडवर्ब, तो वो कहाँ पर प्लेस होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। सो द ट्रेन हैज, अब हमारे पास हैज के साथ में एक ही सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सो ये तो है ही नहीं,
बाकी सब जगह इज वॉज आ रहा है, तो हमें क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो हैज या हैव चाहिए. सो द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन. ट्रेन ने अभी अभी स्टेशन से छुटी है. जो ट्रेन है वो अभी अभी रवाना हुई है, आप ऐसा कह सकते हो. ओके, सो दिस वन इज करेक्ट. नाउ ही लिव्ड इन पटना सिंस जनवरी लास्ट. अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि वो पिछले जनवरी से पटना में रहता है, रह रहा है या रहता है. अभी हो क्या रहा है कि जनवरी लास्ट मतलब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि इस पॉइंट से मतलब लास्ट जनवरी में भी आप कह सकते हो 1994 जनवरी या 2002 जनवरी या 2014 जनवरी या 2003 जनवरी वॉटेवर. लेकिन ये एक पॉइंट हो गया, तो सिंस तो करेक्ट है. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, क्योंकि कोई काम अगर पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है तो और कब खत्म होगा हमें पता नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन एंड वर्ब विथ आईएनजी. राइट, सो ही हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस जनवरी लास्ट. राइट, बिकॉज वो कब तक रहेगा हमें पता नहीं है. ये जो एक्शन है इसका पटना में रहने वाला वो चालू ही है अभी. ही इज स्टिल लिविंग इन पटना. Right, so for such action the present perfect continuous form of the verb is used. So he has been, okay, we don't have any other option having has been, so he has been living in Patna since January last. This one is correct. Okay, now when the house will be built we shall live there. Now the first verb built, it has to be in passive present form, right? Only to signify that the house is under construction. Actually ये जो घर है अभी वो कंस्ट्रक्शन में है. क्या कहना चाह रहा है कि जब ये घर बन जाएगा तो हम वहां पर रहने जाएंगे. राइट, मैंने पहले भी आपको एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं. जब एक सेंटेंस में हमें जो दो क्लॉजेस है दोनों में सेम वो फ्यूचर और फ्यूचर यूज करने की जरूरत नहीं है. जैसे इफ आई कम देयर आई विल मीट यू, या व्हेन आई कम देयर, व्हेन आई कम मे बी देयर, व्हेन आई कम देयर आई विल मीट यू. तो वहां पे मैं जब आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, तो उसके लिए मैं व्हेन आई विल कम देयर ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. व्हेन आई कम देयर आई विल मीट यू उतना भी इनफ है. राइट, तो एक ये दो क्लॉजेस में दो बारी आपको फ्यूचर ये विल यूज करने की जरूरत नहीं है. राइट, सो अभी हो क्या रहा है कि ये जब एक्शन फिनिश होगा, जब घर बन जाएगा तो हम वहां रहने जाएंगे. और दो जगह हमें विल ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, व्हेन द हाउस इज बिल्ट, जब घर बन जाता है तो हम वहां पर रहने जाएंगे. राइट, सो इंस्टेड ऑफ विल यूज इज बिल्ट. और हाउस इज बिल्ट होगा क्योंकि घर को कोई बना रहा है, तो पैसिव वॉइस तो यूज होगा ही, लेकिन इंस्टेड ऑफ विल इट विल बी इज. When the house is built, we shall live there. Right? जैसे आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हो. When you come to Mumbai, I will meet you. और maybe when I go to market, I'll buy this for you. ठीक है, तो दो बारी आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं. ऐसा मैंने if के लिए भी आपको बताया था और इस when के लिए भी. ठीक है, so I hope you are able to understand this. So friends, we'll discuss more questions, we'll take more questions in our next sessions. So do revise this session and the previous ones. Bye bye.